Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. सभी उपस्थित भक्तों को मेरा दंडवत। हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भागवतम का दूसरा स्कंद अध्याय जो 7 और उसमें श्लोका हम आज 3 श्लोका है 43, 44, 45। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्लोका है वेदाहम अंग परमस्य हि योग माया यूयं भवश्च भगवान् अत दैत्यवरयः पत्नी मनोस च मनुश्च तद् आत्मजाश्च प्राचीन्न बर्हिरुभुर् अंग उट ध्रुवश्च इक्ष्वाकुरैल मुचुकुंद विदेहगादि राघव अम्बरीश सगरा गय नाहुसादयः मान्धात्र अलर्क शतधन्व अनुक्रांतिदेव देवव्रतो वैद अमृततरयो दिलीपः सौभरी उतनकशिबि देवल शिबि देवल पिपलाद सारस्वतोध्व पराशर भूरिशरे भूरिशेनाः ये अन्य विभीषण हनुमत उपेन्द्र दत्ता पार्ता अरिष्टसेन विदुर श्रुतदेव वर्याः। ट्रांसलेशन एंड पर्पट बाय डिवाइन ग्रेस AC भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। Translation: O Narad, although the potencies of the Lord are unknowable and immeasurable, still, because we are all surrendered souls, we know how He acts through Yoga Maya potencies. And similarly, the potencies of the Lord are also known to the all-powerful Shiva, the great king of the atheist family, namely Prahlad Maharaj, Swayambhuva Manu, his wife Shatarupa, his sons and daughters like Priyavrata, Uttanapad, Akuti, Dehuti, and Prasuti, Prachinnavari, Bhu, Anga, the father of Vena, Maharaj Dhruva, Ikshvaku, Aila, Muchukunda, Maharaj Janaka, Gadi, Raghu, Amrisha, Sagara, Gaya, Nahusha, Mandhata, Alarka, Shatadhanve, Anu, Rantideva, Bhishma, Bali, Amrutraya, Dilipa, Saubhari, उत्तनक, शिबि, देवल, पिपलाद, सारस्वत, उद्धव, पराशर, भूरिशेन, विभीषण, हनुमान, शुकदेव गोस्वामी, अर्जुन, अरिष्टसेन, विदुर, श्रुतदेव एसेट्रा। तो आपने कितने सारे नाम आज सुने ना, मतलब
सोचिए, भगवान के शुद्ध भक्तों की गणना में इतने सारे नाम है। Purport: all the great devotees of the Lord, as mentioned above, who flourished in the past or present, and all the devotees of the Lord who will come in the future, are aware of the different potencies of the Lord, along with the potency of His name, quality, pastimes, entourage, personality, etc. And how do they know? Certainly, it is not by mental speculation, nor by any attempt by dint of limited instrumental of knowledge, by the limited instruments of knowledge, either the senses or material instruments like microscope and telescopes. One cannot even fully know the Lord's material potencies which are manifested before our eyes. For example, there are many millions and billions of planets far, far beyond the scientist's calculation. But these are only the manifestation of Lord's material energy. What can the scientists hope to know of the spiritual potency of the Lord by such material efforts? Mental speculations by adding some dozens of ifs and maybes cannot aid the advancement of knowledge. On the contrary, such mental speculation will only end in despair by dismissing the case abruptly and declaring the non-existence of God. The sane person, therefore, ceases to speculate on subject beyond the jurisdiction of his tiny brain, and as a matter of course, he tries to learn to surrender unto the Supreme Lord, who alone can lead one to the platform of real knowledge. In the Upanishad, it is clearly said that the Supreme Personality of Godhead can never be known simply by working very hard and taxing the good brain, nor can he be known simply by mental speculation and jugglery of words. The Lord is knowable only by one who is surrendered soul. Here in Brahmaji, the greatest of all material living beings, acknowledges this truth. Therefore, the fruitless spoilings of energy by pursuing the path of experimental knowledge must be given up. One should gain knowledge by surrendering unto the Lord and by acknowledging the authority of the persons mentioned here. The Lord is unlimited, and by the grace of the Yoga Maya, helps the surrendered soul to know Him proportionately with the advance of one's surrender. मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिं यत्कृपातम अहम वंदे श्री गुरु दिनतारिणं परमानंद माधव श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा। तो आज का श्लोक में ब्रह्मा जी ये सारे जो उत्तम भक्त है, बहुत ही उत्तम भक्त वैष्णव, उनके नाम गिना रहे हैं। आपने सुना रहेगा वे सारे नाम जो मैं इस जो अनुवाद में मैंने अभी जो पढ़े। तो जैसे हम लोग गुरु पूजा में गाते हैं ना, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, चक्षुर्दान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु श्रेय, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये, क्योंकि हम लोग भौतिक जगत में हर चीज जब हम पाठशाला जाते हैं, स्कूल जाते हैं, वहां पे बहुत सारी किताबें पढ़ पढ़ के ज्ञान अर्जित करते हैं, राइट। लेकिन ये दिव्य ज्ञान जो है, ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जो क्या कहते हैं, पूर्ण तरह शुद्ध ज्ञान, जो कर्म कांड से रहित, जो कर्म कांड से मतलब इसका कोई वास्ता नहीं है। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिये सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं एवं स्फूर्त्यत। कल गोपीमन प्रभु ने हमको ये समझाया था। अतः श्री कृष्ण नाम आदि, भगवान के नाम, दिव्य लीला, उनके दिव्य गुण, उनके जो शुद्ध भक्त, न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय, आप ही अपने जो भौतिक इंद्रिय जो अभी भी शुद्ध नहीं, पूरी तरह से शुद्ध नहीं, इस अशुद्ध इंद्रियों से हम कुछ भी जान नहीं पाएंगे। लेकिन वही जीव अगर प्रामाणिकता से एक प्रामाणिक गुरु का शरण लेता है, जैसे कि हमारे गुरु महाराज श्रीला प्रभुपाद के अन्य जो शुद्ध भक्त है, जब उनकी चरणों का प्रामाणिकता से वो शरण लेता है, तो क्या होगा, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। ये जो दिव्य ज्ञान है ना, वो मतलब किताबें पढ़ के, या जैसे प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं एक्सपेरिमेंट करके, किताबी कीड़ा बन के आपको नहीं मिलेगा। वो जो है, वो दिव्य ज्ञान जो है, वो क्या होता है, हृदय में प्रकाशित होता है। अगर आप जो भी बड़े बड़े जो हमारे भक्त है, अगर आप उनसे अगर आप कभी, उन्होंने कभी अपने बारे में मतलब किस तरह से वो कृष्णा भावनामृत में उन्होंने प्रगति की, अगर वो आपको बताएंगे, तो केवल वो यही बताते हैं कि जो कुछ मैं जान पाया हूँ या जान रहा हूँ या जो कुछ मैं बोल रहा हूँ, वो केवल और केवल
गुरु की कृपा से। हाँ, मैं जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जैसे हम लोग केवल तोते जैसे है। हम लोग यहाँ पे कुछ अपने मन गढ़ंत कहानी नहीं बताते, या मुझे ऐसा लग रहा है या मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, नहीं। हम लोग जो प्रभुपाद और हमारे जो गुरु जो हमको बता रहे हैं, केवल उसको दोहरा रहे हैं। तो इसी में हमारा जो है जय है, इसी में हमारा सक्सेस है। अगर हम लोग अपने मन के क्या बोलते हैं, मन और इंद्रियों के आवेश में या उनके अधीन आके अगर कुछ बताने का अगर हम प्रयास करेंगे, तो केवल वो एक समय की बर्बादी होगी। और यहाँ जो सारे वैष्णव है, उनका भी समय व्यर्थ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम अभी भी उस स्तर पे नहीं है जहाँ पे हम कुछ भगवान के बारे में कुछ अपने मन और बुद्धि से उनको समझ पाए। हम उस स्तर पे नहीं है। क्योंकि अगर आप देखोगे, ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि अगर कोई कहता है कि मैं भगवान को पूरी तरह से जानता हूँ, तो ऐसा व्यक्ति अगर कहना चाहे तो कह ले। लेकिन जहां तक मेरी बात है, ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान को जानना बिल्कुल असंभव है। हाँ, वो जितना हमको जानने का मतलब जानने का हमको अनुमति देते हैं, हम बस उतना ही उनको जान सकते हैं। और फिर भगवान जो ब्रह्मा जी है, सारे जो वैष्णव के नाम है, ये सारे शुद्ध भक्तों के नाम गिना रहे हैं। और एक्चुअली वो एंड नहीं है, उन्होंने, अगर आप देखोगे अनुवाद में एसेट्रा डाला है, मतलब भगवान के बहुत सारे शुद्ध भक्त है। उनमें से कुछ गिने चुने जो नाम है, ब्रह्मा जी ने यहाँ पे बताया है। तो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हम लोग जब कृष्णा भावनामृत में आते हैं, हम लोगों को पता चल जाता है कि भगवान जो कृष्ण है, वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। और फिर उनके अलग अलग अवतार है। स्वंश अवतार है, लीला अवतार, पुरुष अवतार, मनवंतर अवतार, ये सारे हमको सारा ज्ञात होना शुरू होता है। लेकिन ये सारा जितना भी हमको नॉलेज है, वो एक सागर में एक बूंद की समान है। अभी भी हमको जितना कुछ हमको प्रभुपाद की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से, जो कुछ भी हम लोगों को भी थोड़ा बहुत ज्ञान है, अगर उसको तोला गया कि कितना जानते हो, तो वो केवल एक महासागर, मतलब महासागर में एक बूंद के हिसाब से है। और क्योंकि हमारी अभी तक श्रद्धा प्रगाढ़ नहीं है, अभी भी हम लोग 3 गुणों के अधीन होने के कारण सब कुछ जानते हुए भी कि भगवान ही सब करता है, भगवान के द्वारा ही सब चलायमान है। हम भौतिक शरीर नहीं है, हम भगवान के शाश्वत अंश है। हमारा जो घर है आध्यात्मिक जगत है। ये सब जानते हुए भी, क्योंकि अभी भी हम 3 गुणों के अधीन है, इसके वजह से क्या हो रहा है, ये सब ज्ञान होते हुए भी नॉलेज है, लेकिन वो प्रैक्टिकल उसका एप्लीकेशन या वो जो इंटरनली वो कहते हैं ना, ज्ञानम, एक होता है ज्ञान और दूसरा होता है विज्ञान। एक होता है प्रैक्टिकल, एक होता है नॉलेज, और एक प्रैक्टिकल नॉलेज मतलब उसको अप्लाई करना। ज्ञानम स विज्ञानम यज्ञात्वा मोक्षये शुभात्। जब हम उसको प्रैक्टिकली हम जीवन में जब अप्लाई करेंगे और टोटली उसको मानेंगे, बिना 100% जब उसको मानेंगे, इवन 1% हमको अगर संशय आता है, इवन 1% डाउट आता है कि ऐसा क्यों है, जैसे कि कल हमारा प्रश्न उत्तर में बहुत बार होता है कि भगवान ऐसा क्यों करते हैं। ये जो प्रश्न है क्यों करते हैं, इसका मतलब अभी भी पूरी तरह से हम लोग, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये प्रश्न पूछना गलत है, पूछना ही चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल हम सबको पता है कि हम शुद्ध भक्त के बनने की प्रयास में है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे मतलब डेफिनेटली बहुत सारे जो हर रोज भागवतम का क्लास अटेंड कर रहे हैं, अच्छा तरह श्रवण कर रहे हैं, डेफिनेटली हम सब प्रयास कर रहे हैं, और कितने सारे यहाँ पे शुद्ध भक्त है। लेकिन जब भी ये एक सवाल जब आता है कि क्यों, विच मीन्स इसका यही तात्पर्य होता है, इसका यही निष्कर्ष है कि अभी भी कहीं ना कहीं हृदय में वो एक संशय है। 100% अभी तक हम भगवान पे निर्भर नहीं। तो
जब हम 100% नहीं, तो फिर हम लोग कैसे भगवान को पूरी तरह से जान सकते हैं, या फिर भगवान हमको क्यों अपने बारे में और ज्यादा बताएंगे। हाँ, अगर मान लो अगर दो मित्र है, वो मित्रता कब बढ़ती है, जब दोनों एक दूसरे पर एकदम मतलब निसंदेह एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, तभी वो मित्रता बढ़ती है ना। तभी एक दूसरे को हम हर चीज बताते हैं, हर चीज बिना संकोच के। हाँ, क्योंकि दोनों को पता है कि ये मुझ पे पूरा विश्वास रखता है और ये मेरे लिए जो मैं कहता हूँ हमेशा मानता है, उसी तरह दूसरा भी। तब ऐसी जब संबंध होते हैं, हाँ, तभी वो मित्रता बहुत गहरी होती है, बहुत बढ़ जाता है। तभी निसंकोच एक दूसरे को अपने हृदय में जो कुछ है बताते हैं। तो उसी तरह भगवान भी देख रहे हैं, श्रद्धा अनुसारी भक्ति अधिकारी। तो हमारी जितनी श्रद्धा प्रगाढ़ होगी, उतना भगवान हमें अपने बारे में बताते जाएंगे, बताते जाएंगे। लेकिन जितना भी भगवान हमको अपने बारे में बताएंगे, हमको ये एक चीज याद रखना है, वो केवल सागर में एक बूंद के समान है। क्योंकि भगवान मतलब हम सोच भी नहीं सकते। मतलब सोचिए, ये भगवान, ये जो पूरा पृथ्वी, हाँ, हमारा ये जो ब्रह्मांड का जो एक मतलब ब्रह्मांड का पूरा जो क्या कहते हैं टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम भगवान का केवल एक श्वास है। आप सोच सकते हो क्या, मतलब इसका मतलब अगर आप कभी ऐसा बैठ के सोचोगे, हम लोग अभी जब मैं बात कर रहा हूं, मैंने कितने सांस लिए, कितने सांस छोड़े, और भगवान का केवल एक सांस जो है, इट इज 3 ट्रिलियन। मतलब ब्रह्मा जी का जो आयु है 100 साल, अगर हम अपने मटेरियल कैलकुलेशन से करेंगे, इट कम्स टू सम 3 ट्रिलियन ईयर्स। 3 ट्रिलियन ईयर भगवान का केवल एक सांस है। तो सोचिए, और एक कौन, महाविष्णु भगवान के अंश के मतलब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के मतलब कितने तो प्लेनरी एक्सपेंशन। हाँ, तो अगर उनका केवल एक सांस अगर 3 ट्रिलियन ईयर है, तो सोचिए भगवान कितने अनलिमिटेड है। हाँ, और ऐसे अनलिमिटेड भगवान, इसलिए हमारा अगर पूरा आंदोलन देखेंगे हम चैतन्य महाप्रभु का, तो हम लोगों को भगवान की महानता तो पता है, और हमको पता है वो असीमित है। तो हम लोग अपना जो समय है, वो भगवान को मतलब उनकी विभूति या उनका जो पावर है, उसको जानने से ज्यादा हम लोग भगवान की भक्ति करने में अपना समय या अपना जो एनर्जी है उसमें लगाना चाहिए। हाँ, तो अगर, और जैसे हम बोलते हैं ना कि हम गौड़ीय वैष्णव का जो घर है वो कहाँ है, वृंदावन धाम। तो वृंदावन धाम अगर हमको जाना है, हाँ, तो भगवान कितने महान है, इससे जानने से ज्यादा हमको प्रयास करना है कि मैं किस तरह से भगवान को खुश करूं, किस तरह से भगवान जो चाहते वही करूं। हाँ, यही हमारा प्रयास होना चाहिए। तो जब ये हम हमेशा जो क्यों जो हमारे जीवन में आते रहता है, कि उस दिन रथ यात्रा में कुछ भक्तों का भक्त चल बसे, तो तभी भी हमको लगा रहे क्यों ऐसा हुआ। इतना अच्छा रथ यात्रा महामहोत्सव में भगवान ने ऐसा क्यों किया। तो ये सारे क्यों जो है, वो एक्चुअली एक तरह से क्या कहते हैं, हम इसको छिपा नहीं सकते। हम फिर बोल देते कि नहीं, ये भगवान की लीला होगी, भगवान ने उनके बारे में कुछ ऐसा सोचा होगा, उनके कर्म कुछ ऐसे थे तो भगवान चाहते थे उनको लेके जाऊं। फिर हम खुद इसका जवाब देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो हृदय में वो रह जाता है कि लेकिन क्यों किया भगवान ने, ऐसा क्यों किया उनके साथ, रथ यात्रा के टाइम ऐसे ही क्यों किया। फिर हम लोग भले बाद में बहुत कुछ बोल देते, लेकिन फिर भी वो प्रश्न क्यों का हमारे हृदय में रह जाता है। ये जो है एक इट इज ए इंडिकेशन कि अभी भी हम लोग पूरी तरह से भगवान के ऊपर हमारा जो विश्वास है पूरी तरह से नहीं है। इस क्यों जो हमारे, फिर वो किसी भी चीज का क्यों ना हो, कोई भी सवाल क्यों ना हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ गलत कर रहे हो या आपको नहीं पूछना चाहिए। नहीं, हमको पूछना चाहिए, लेकिन ये भी जानना चाहिए कि ये जो क्यों हमारे मन में आते रहता है, इसका मतलब अभी भी भगवान के ऊपर हमारा विश्वास पूरा नहीं है। तो वृंदावन में अगर हम देखेंगे, हाँ, जब ये गोवर्धन लीला हुई, हाँ, जब गोवर्धन लीला हुई, तो बहुत इनको ब्रजवासियों को इतना सारा मतलब एक्सटर्नल अगर आप देखोगे बहुत कष्ट हुआ, हाँ, बहुत सारा कष्ट हुआ। लेकिन किसी ने एक भी ब्रजवासी ने ना अपने मन में या फिर बाहर से
भगवान श्री कृष्ण को एक बार भी नहीं पूछा कि आपने ऐसा सब क्यों किया, आपकी वजह से हमको कितना कष्ट हुआ। 7 दिन ये बारिश हो रही थी, नो डाउट हमको कुछ हुआ नहीं, लेकिन अगर कुछ हो जाता तो क्योंकि वहां पे वृंदावन में क्या है ना, वृंदावन में कोई नहीं जानता कि कृष्ण भगवान है, और किसी को पड़ी भी नहीं है वो भगवान है कि नहीं। वो लोग उसको उनको हृदय से इतना प्रेम करते हैं कि मतलब उनको बिना कृष्ण के कुछ भी वहां पे नहीं चाहिए। ये ऐसा जो माहौल है वो वृंदावन का माहौल है। तो किसी एक भी ब्रजवासी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा नहीं कि ये जो पूरा गोवर्धन लीला में हमको इतना जो कष्ट हुआ या इतना जो बेचैनी या इतना चिंता हुई, ये सब आपकी वजह से, क्योंकि आपने ही कहा कि इंद्र की जो पूजा है रोको, तो आपने ऐसा क्यों किया। तो एक भी ब्रजवासी ने ना पूछा और ना ही उनके हृदय में वो प्रश्न था। कभी कभी क्या होता है, हमारे हृदय में प्रश्न होते हैं, हम पूछते नहीं लेकिन वो रहते हैं। लेकिन ब्रजवासी इतना मतलब शुद्ध भक्त है, उनके हृदय में भी वो प्रश्न नहीं था कि कृष्ण ने आखिर ऐसा क्यों किया। और उसके विपरीत वो 7 दिन इतने खुश थे, क्योंकि 7 दिन 7 रात भगवान उनके सामने थे। वो इतना भगवान को निहार रहे थे, उनका दर्शन ले रहे थे, उनको मुस्कुराते देख के इतना खुश थे कि उनको लगा भी नहीं कि कुछ बड़ी आपत्ति आई है। सोचिए, मन में तो है ही नहीं कि ऐसा सब क्यों हुआ। और वो 7 दिन वो केवल और केवल, और उनको ऐसा शायद लगा रहेगा कि ऐसे ही चलता रहे इंद्र बरसात करते रहे और हम इस गोवर्धन के नीचे भगवान के आश्रय में कंटिन्यूस रहे। अगर हम लोग भी देखो, कभी कभी मतलब अपनी बात करता हूँ, हम धाम भी जब जाते हैं, धाम मतलब कुछ क्षणों के लिए हम एकदम भाव विभोर हो जाते हैं, अरे मैं वृंदावन धाम आ गया, लोटपोट होते हैं, दंडवत करते हैं, लेकिन कुछ देर बाद वो चला जाता है। हम दर्शन भी जब लेते हैं, कुछ क्षणों के लिए हम आनंदित होते हैं, लेकिन कुछ क्षण के बाद क्या होता है, अच्छा हो गया, अभी दर्शन तो ले लिया, चरण कमल देख लिए, चरण मुख देख लिए, सब कुछ देख लिया, अभी चलो थोड़ा, फिर क्या होता है, चलो घूमते हैं, ये खरीदी करते हैं, वो खरीदी करते हैं, राइट। हम लोगों का कॉन्शियसनेस, मैं कुछ ये नहीं कर रहा हूँ, दोष नहीं देख रहा हूँ यार, लेकिन ये अपना मतलब कॉन्शियस, ये अपनी चेतना है, राइट। और यहाँ पे ब्रजवासी 7 दिन 7 रात भगवान को देख कर वो मतलब ऐसा नहीं कि उनका मन भर गया, वो और देखना चाहते हैं, और वो उनको पता भी नहीं लग रहा है कि बाहर कुछ समस्या है या कुछ आपत्ति आई हुई है। सो दिस इज व्हाट इज एक्चुअल, मतलब ये एक्चुअली भक्त का लक्षण, मतलब एक शुद्ध भक्त का लक्षण है। इसलिए हम लोग यहाँ पे है, इसलिए हम लोग इस भौतिक जगत में, हमको कभी कभी लगता है कि हम लोग 16 माला किया, हम लोग ये छोड़ा वो छोड़ा। एक्चुअली अगर कंपेयर करेंगे, जो आध्यात्मिक जगत में जो भक्त है, उनसे अगर हम तुलना करेंगे, आई थिंक अगर वो लोग 99.9% स्कोर कर रहे हैं एग्जाम में, हम तो आई थिंक एवरेज 35% स्कोर कर रहे हैं। मतलब वो भी पता नहीं स्कोर कर रहे हैं कि नहीं, वो भगवान हमको पास कर रहे लगता है, इधर उधर मार्क्स देके। हम ये एक हो गया। फिर देखिए, हम लोग ना हर चीज जो करते हैं वो एक्चुअली डर के करते हैं। अगर कुछ भी अगर थोड़ा बहुत गलती होता है, हम डर जाते हैं, अरे कहीं भगवान को गुस्सा तो नहीं आएगा, कहीं ये प्रॉब्लम तो नहीं होगा, कहीं वो प्रॉब्लम तो नहीं होगा। इवन कृष्णा भावनामृत में जब हम कार्य करते हैं, कितने बार हम लोग डरते हैं, राइट। अरे भगवान को इस दिशा में रखना है, भगवान को उस दिशा में रखना है। अरे आज मुझसे ये गलती हुई, आज आरती करते वक्त मैंने शायद सही से आरती नहीं की। मतलब इतना सारा हम लोग डर के कार्य करते। क्यों? इसलिए नहीं कि भक्ति में शायद मुझे भक्ति में प्रगति होगी या नहीं, ये सोच के नहीं, ये सोच के कहीं भौतिक जगत में इसके कारण मुझे कोई आपत्ति ना आए। हम लोग एक्चुअली ये जो मेंटालिटी है ना, ये कर्मकांडी मेंटालिटी, जितने भी जो भगवान के भक्त नहीं है, जो कृष्ण भावनामृत में कार्य नहीं करते, जो केवल देवी देवताओं की उपासना करते, इन लोगों को कर्मकांडी क्यों कहते हैं? क्योंकि उनका हर चीज केवल एक उद्देश्य है कि वो लोग देवी देवताओं का उपासना करके कुछ
फल मिले। और हमेशा वो यही उनका लक्ष्य रहता है कि जब मैं कोई कार्य कर रहा हूँ देवी देवता का, कोई गलती ना हो जिससे मुझे उसके आगे चल के कुछ भुगतान करना पड़े, कुछ आपत्ति आए। तो हम भी कभी कभी कृष्णा भावनामृत में भी कितना डर डर के, अरे अरे आज मैंने ये नहीं किया, कहीं कृष्णा को गुस्सा ना आए। और उस दिन अगर कुछ गलती, कुछ ऊपर नीचे हो गया, फिर हम वापस, हमको लगता है अरे आज मैंने कुछ ये गलती किया रहेगा पूजा करते वक्त या भोग लगाते वक्त, या तो ये सोच के हम लोग कितना डर जाते हैं। तो दिस इज ऑल्सो लाइक कर्मकांडी। लेकिन जो शुद्ध भक्त होता है तो उसकी चेतना कैसी होती है, वो पूरे हृदय से कार्य करते जाता है, कार्य करते जाता है। अगर कार्य करते हुए अगर कुछ गलती भी हो जाती है तो वो सोचता है चलो गलती अगर हो गई नो प्रॉब्लम, भगवान आप जो करना है करिए, लेकिन मेरी भक्ति में रुकावट मत लाइए। कि भौतिक जगत में जो कुछ होना है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क मतलब जो होना है वो मेरे हाथ में नहीं है। अगर हो जाता है तो प्लीज क्षमा करना, लेकिन मेरे भक्ति जीवन में रुकावट मत लाइए। लेकिन हम लोग क्या है, हमको तो भक्ति जीवन में आगे बढ़ना है, लेकिन हम लोग भगवान से पहले ये मांगते हैं कि भगवान प्लीज मेरे भौतिक जगत, भौतिक जो जीवन है उसमें प्लीज बाधा मत लाइए। और दिस इज एक्चुअली मोर लाइक कर्मकांडी रियलिटी। तो इसका अगर उदाहरण देना है तो गोपियों का उदाहरण, जिस जस्ट टाइम नारद मुनि गोपियों से आके कहते हैं कि भगवान को सर दर्द है और उनका सर दर्द केवल उनके शुद्ध भक्तों के जो चरण धूलि है वो सर पे अगर लगाएंगे तभी वो ठीक हो सकते हैं। तो रुक्मिणी माता क्या कहती है, नहीं नहीं ये तो मेरे स्वामी है, इनके सर पे अपने रज कैसे दे सकते हो। हाँ, फिर बहुत सारे रानियों के पास जाते, कोई नहीं देने के लिए रेडी है। लेकिन वही जब गोपियां है वो क्या करते, भर भर के देते हैं। और नारद मुनि जो एकदम आश्चर्यचकित होते, वो बोलते कि आपको डर नहीं लगता, आप अपना जो चरण कमल का धूली भगवान के सर पे लगाने दे रहे हो, पता है कितना बड़ा अपराध है। तो गोपियां पता है क्या कहती है, वो अपराध है या हमको नरक जाना पड़ेगा वो तो बात की बात है, हम इसके लिए पूरा तैयार है, लेकिन पहला अभी है कि भगवान का सर दर्द ठीक होना चाहिए। तो सोचिए क्या कॉन्शियसनेस है, क्या चेतना है। एक्चुअली इसको कहते हैं शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति जब हम करते हैं, हम अपने क्या कहते हैं विपरीत स्थिति, अनुकूल स्थिति, हाँ इसके बारे में बिल्कुल हम लोग परवाह नहीं करते। हाँ, एक बार प्रभुपाद बैठे थे कुछ लिख रहे थे और एक माताजी आई, क्योंकि प्रभुपाद के जहाँ बैठे थे उसी दीवार के ऊपर उनको आई थिंक भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, प्रभुपाद के जो गुरु महाराज है, उनका फोटो लगाना था। तो एक बार आके गई तो उन्होंने देखा कि प्रभुपाद कुछ लिख रहे हैं तो वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। फिर अगेन वो दूसरी बार आई, तो इस बार जब प्रभुपाद ने उनको देखा तो प्रभुपाद ने कहा हाँ बताओ क्या हुआ। तो प्रभुपाद को उन्होंने कहा कि नहीं, आप जहाँ बैठे हो जस्ट उसी के ऊपर दीवार पे मुझे आपकी गुरु महाराज की फोटो लगानी थी, तो मैं लेकिन आप बिजी हो इसलिए जा रहा हूँ। लेकिन गुरु तब प्रभुपाद ने कहा नहीं नहीं आप लगाओ। और प्रभुपाद ने एक अच्छी बात कहा कि एक सेवा करने के लिए अगर आपको मेरे सर के ऊपर भी चढ़ना पड़े, अब मेरे सर पे पैर रख के भी आपको ये सेवा करनी पड़े, तो उसके लिए भी आप बिल्कुल हिचकिचाइए मत, मतलब आप कर सकती हो। आपको मेरे सर पे पैर रख के मतलब चढ़ के इस दीवार पे ये फोटो लगानी है तो उसके लिए आप कर सकते हो। मतलब प्रभुपाद भी यहाँ पे दर्शा रहे हैं कि मोर देन एनीथिंग, मतलब भक्ति या सेवा ऐसी करो कि मतलब केवल और केवल मतलब एक ही उद्देश्य है कि भगवान प्रसन्न हो, हाँ, और मैं भक्ति में प्रगति करूं, उसके अलावा और कोई हेतु नहीं है। तो हम जब ऐसी भक्ति करेंगे, ऐसी जब हम भक्ति करेंगे और ऐसा चेतना जब एक्चुअल होगा, हाँ बस दिखाने के लिए नहीं, मन में बहुत सारे संशय पे संशय आते जा रहे हैं, बाहर हम उसको दिखा नहीं रहे, हाँ, और बाहर केवल ऐसा दिखा रहे नहीं मुझे पूरा भगवान के ऊपर भरोसा है, हाँ जो भी भगवान कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, जो कुछ हो रहा है भगवान की कृपा से हो रहा है, दिखा तो रहे लेकिन अंदर बहुत संशय आ रहे, भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, अरे मैं तो अभी भक्ति में आने के बाद ये छोड़ा वो छोड़ा, फिर भी भगवान ऐसा क्यों करे, ऐसा चल रहा है। ऐसे नहीं, अंदर और बाहर दोनों तरह से जब आप भगवान की शुद्ध भक्ति करोगे तब हम, जैसे अभी यहाँ पे जो नाम गिने चुने नाम बताए जा रहे हैं, हाँ उनके थोड़े तो कहीं तो नजदीक आके हम भगवान को कुछ तो थोड़ा बहुत जानना शुरू करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे उस दिन वामन लीला माता जी ने भी बहुत अच्छा कहा था कि जब हम गुरु के प्रति शरण होते हैं
हाँ, गुरु के प्रति शरण दो, जो कह रहे हैं एज इट इज, हाँ एज इट इज। अगर गुरु बोलते बैठो बैठो, गुरु बोलते उठो उठो, हाँ अगर जब मतलब पूछेंगे नहीं, अरे गुरु महाराज क्या चल रहा है, आप कब अभी कह रहे हो बैठो, अभी कह रहे हो उठो, बिना कुछ सोचे चलो गुरु महाराज ने बोला उठो तो उठो, गुरु महाराज ने बोला बैठो तो बैठो। तो ऐसा जब हम शरणागति लेते हैं, एक बार अमरेंद्र प्रभु बता रहे थे, एक बहुत ही अच्छे भक्त थे जो यूएस में, हाँ अमेरिका में नौकरी कर रही थी, बहुत अच्छा उनका नौकरी चल रही थी, बहुत मतलब अच्छा धन कमा रहे थे वगैरह। लेकिन उनके जो गुरु महाराज है हिज होलीनेस भक्ति विकास स्वामी महाराज, एक बार उनको मिले वहां पे यूएस में, और उन्होंने उनको आदेश दिया कि आप एक काम करो, यहाँ से पूरा वाइंड अप करके आप भारत में अपना सेटल करो और वहां पे प्रचार करो। जैसे वो महाराज ने उनको ये आदेश दिया, तुरंत उन्होंने अपना इस्तीफा दिया और सीधा भारत चले आ गए और अपना वहां पे प्रचार और जो कुछ अपना, वो गृहस्थ होने के कारण वहां पे उन्होंने काम करना शुरू किया। और बताते हैं अमरेंद्र प्रभु, एक बार जब ये अपने पिताजी के साथ, अपने परिवार के साथ जब जगन्नाथपुरी चले गए भगवान का दर्शन लेने के लिए, तो कहने लगे कि उनके जो पिताजी है इस डिवोटी के, वो जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ टेम्पल में भगवान का दर्शन लेते लेते भगवान का नाम का उच्चारण, नाम का जप करते करते उन्होंने शरीर छोड़ा। सोचिए, जगन्नाथ जी के टेम्पल में, मंदिर में भगवान का दर्शन लेते हुए उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। तो बता रहे थे ये होता है जब हम गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं। जब गुरु ने कहा इंडिया जाओ, वो चले गए, तो देखो उनको आशीर्वाद में उनके पिताजी ने जगन्नाथ जी के सामने अपना जो है शरीर को त्यागा। तो ये होता है। तो गुरु की जब हम समर्पण करते हैं, और इसको कहते हैं एक्चुअली समर्पण, हम अपना कुछ भी जो कैलकुलेशन है साइड में रखते हैं। हमारे तो मन में बहुत सारे कैलकुलेशन चालू रहते हैं, तब ये सारा कैलकुलेशन साइड में रख के जब पूरी तरह से गुरु को शरणागति होते हैं, तो इसका जो फल है आध्यात्मिक फल ये होता है। तो जब हम इस स्तर पे आएंगे, तब एक बूंद समान भगवान को कुछ जान सकते हैं। वही ना, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो। इसलिए भगवान कहते हैं न में क्या मुझे जानने के लिए, मतलब आपका ये सारा धन ऐश्वर्य, आपका ये तेज, ये रूप, ये कोई काम नहीं आएगा। अगर कुछ काम आएगा, भक्त्या तुतोष भगवान गजयूत पाया। भगवान केवल भक्ति से तुष्ट होते हैं। हम इवन परसों एक भगवान, एक प्रभु जी ने बहुत अच्छा समझाया, पता है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्ति उपरितम अश्नामि प्रयत आत्मनः। एक्चुअली क्या है, और प्रभु जी ने बहुत अच्छी तरह से हमको ये समझाया कि भगवान मांगते नहीं है कि मुझे पत्र दो, पुष्प दो, फल दो, ये एक्चुअली मांगते नहीं है। लेकिन फिर वो सोचते हैं कि ये बद्ध जीव इतना अपने भौतिक जगत में आसक्त है, इतना आसक्त है, तो अगर मैं इससे कुछ इसके ऊपर कृपा करनी है, ये तो कृपा करने मुझे देगा नहीं, और उसके पास जो संपत्ति है या जो कुछ है ये भी मुझे देगा नहीं, तो इसके ऊपर कृपा कैसे करूं। तो क्या कहते हैं, एटलीस्ट बेसिक चीजें जो मतलब जो फ्री में मिल सकती है या जिसका ज्यादा कीमत नहीं है, मौल्य नहीं है, ये तो ये देने से मुझे चूकेगा नहीं, मतलब इतना तो ये दे सकता है। तो इसकी वजह से भगवान ने ना, जैसे हमारा 64 राउंड्स है ना स्टैंडर्ड, तो प्रभुपाद ने कृपा करके 16 माला लाया। तो उसी तरह से भगवान ने क्या किया है, हम जैसे पतित जीवों को कृपा करने के लिए एक्चुअली भगवान को क्या जरूरत है। आप पुष्प अगर चाहिए तो भगवान को क्या, मतलब ऐसे भी अगर आप रास्ते पे टहलने निकलोगे, कोई भी शहर में क्यों ना हो, कितने सारे पुष्प के फूल रहेंगे। अगर आम के सीजन में कितने सारे आम रास्ते पे पड़े रहते हैं, तो भगवान को जरूरत है क्या? नहीं। फिर भी हमको कृपा करने के लिए, और ताकि हम कुछ तो उनको अर्पण करें, ये सोच के भगवान ने ये सब कहा है कि एटलीस्ट ये तो दो। मेन उद्देश्य क्या है, ताकि भगवान बोलेंगे चलो आपने ये दिया, अभी मैं आपके ऊपर कृपा करता हूँ। तो इतने मतलब भगवान मर्सीफुल है।
और अगर हम उतना भी अगर नहीं करेंगे तो फिर और क्या कर सकते हैं भगवान, मतलब और मतलब ऐसे तो भगवान एक्चुअली देखेंगे हम लोगों का, मतलब कितने सारे लोग अभक्त है, कितने सारे अधर्म जीवन जी रहे, लेकिन भगवान उनका भी पालन पोषण कर रहे हैं। तो एक्चुअली भगवान तो मतलब उनकी कृपा का मतलब उनको जान भी नहीं सकते हम, और वो कितने कृपालु है ये भी हम लोग मतलब ये भी हम लोग कभी भी जान नहीं पाएंगे, इतने कृपालु है भगवान। और एक बार एक प्रभु जी ने भी बहुत अच्छा कहा था कि आप जो अपने सामने से जो दे रहे हो वो भगवान उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, भगवान इंटरेस्टेड है कि आप अपने पीठ पीछे क्या छुपा रहे हो हाँ, उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि वो जो पीठ पीछे हम लोग छुपा के रखते हैं ना, वही हमारे इस भौतिक जगत में आसक्ति बनने का कारण होता है। तो भगवान उसके अंदर इंटरेस्टेड है ताकि वो अगर निकाल लूं तो एटलीस्ट शायद हमारी आसक्ति खत्म हो जाए इस भौतिक जगत से और हम भगवान की भक्ति करना शुरू करें। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोगों को भी अभी प्रभुपाद की कृपा से जो ये मौका मिला है, भगवान बहुत इतने अनलिमिटेड कि वो हम अपना समय व्यर्थ करेंगे कि मतलब और हमको ये क्यों वगैरह करने से ज्यादा जो भगवान को हम भक्ति से उनको जो संतुष्टि दे सकते हैं, आप 16 माला शुद्ध 16 माला नियमों का पालन करना, भक्तों का संग करना, भक्तों का सेवा करना, ये अगर सब हम करते रहेंगे तो भगवान इतने खुश होंगे। तो हम जितने अच्छी तरह से ये सारी सेवाएं करेंगे उतना भगवान हमको अपने बारे में बताते जाएंगे, हमारे गुरु के द्वारा, हमारे वरिष्ठ वैष्णव के द्वारा, कभी कभी कुछ अनुभूतियों के द्वारा। तो इसलिए हमको अपना पूरा जो प्रयास है ना भगवान की शुद्ध भक्ति करने में लगानी चाहिए। तो जितना शुद्ध भक्ति हम करते जाएंगे भगवान अपने बारे में हमको बताते जाएंगे। हाँ, दिव्य ज्ञान वो हृदय में प्रकाशित होते जाएगा और फिर ये सारा क्यों ये सब कम होते जाएगा। और फिर हम जो अपना जीवन का जो उद्देश्य है, हम कृष्ण भक्ति, शुद्ध कृष्ण भक्ति, उस लक्ष्य को पाने में सफल हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रुकता हूँ। हरे कृष्णा। सारे भक्तों का वापस बहुत ही धन्यवाद। और आपसे भी अनुरोध है कि आप अगर अपना कुछ ऐड करना चाहते हैं तो प्लीज ऐड कीजिए। और ये जो मैंने कहा कि ये कर्मकांडी एक्टिविटीज, मतलब टेक इट इन द, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि वो लोग क्यों ऐसा करते हैं, और हम लोग भी अगर भगवान की भक्ति करते करते डर जाएंगे कि अरे मैंने एक गलती किया तो मेरे जीवन में शायद ये प्रॉब्लम आएंगे, वो प्रॉब्लम आएंगे, देन अपना भी कॉन्शियसनेस उनके जैसा है। हम लोगों को डरना नहीं, अगर हमसे कुछ गलती भी होती है हम बोलते हैं चलो प्रभु आप इसका सजा दीजिए, लेकिन भक्ति में मुझे आगे बढ़ाते रहिए और मुझे बुद्धि दीजिए कि ऐसा मैं गलती ना करूं। बस यही हमारा होना चाहिए, हमको डरना नहीं चाहिए। अरे आज ये प्रॉब्लम हुआ, शायद मैंने भगवान की कुछ अपराध किया रहेगा, ऐसा सब हमको नहीं सोचना चाहिए। हमको केवल सोचना चाहिए भगवान हमको भक्ति में आगे बढ़ाते रहिए। तो इस उद्देश्य से मैंने कहा था। तो हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर क्लास था। और अपने जो भक्ति विकास महाराज जी के जो स्टोरी कही कि गुरुमुख पद्म वाक्य जो उन्होंने कहा, उनके शिष्य ने तुरंत किया और उनके पिताजी को किस तरह से गति मिली। और वो जो आपने कहा कि हमें भगवान की तरफ पूर्ण तरह शरणागत होना चाहिए। अगर पूर्ण तरह शरणागत होते हैं तो हमारे मन में वो विचार नहीं आएगा कि ये सब क्यों हुआ, जैसे रथ यात्रा के वक्त। और दूसरा जो आपने कहा था कि गोवर्धन लीला के वक्त जब वो इतने सारे उनके ऊपर संकट आया था, इतने इंद्र ने बारिश के थे वज्र के समान, फिर भी वो लोग सब खुश थे, खुशी नहीं थे। तो इंद्र को ये कर रहे थे, बधाई दे कि इंद्र कितना महान है, इंद्र की वजह से हमें कृष्ण के दर्शन 7 दिन 7 रात तक हो रहे हैं। वो सब गोप जितना भी वृंदावन वासी है उन्हें कृष्ण के तरह कितना समर्पण था वो दिखता है। और कितना सिर्फ ये नहीं कि वाह कि कृष्ण के दर्शन मिल रहे हैं, और जब उनके ऊपर वो कृष्ण का जब सर दुखने लगा तब सबने कहा, रुक्मिणी ने और दूसरे भक्तों ने कहा कि मैं नहीं दे सकते अपनी चरण धूल। वही ब्रिजवासी जो है गोपियां, उन्होंने तुरंत दे दिए। वो बहुत अच्छा अपने सब कनेक्ट किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सुंदर क्लास था प्रभु। हरे कृष्णा।
थैंक यू माता जी, आप सब आप जैसे वरिष्ठ भक्तों के आशीर्वाद से बोल पाया माता जी, गुरु महाराज की कृपा से। थैंक यू सो मच, ऐसे आप आशीर्वाद देते रहिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।